actually we have completed our direct indirect speech in last 6 or 7 lectures. Today just we are going on another topic, and that is active voice, passive voice. Okay, so in board examination we will have this question asked in dual directed transformation. Okay, so just today we are, this topic is not only for 10th standard, but this is also for the 12th standard also, 12 English medium. So 10 and 12 English medium. Okay, topic, grammar topic is transformation. Transformation. So in transformation, today we are going to study about active voice, passive voice. We have to convert active voice into passive voice. So title is active passive voice. Okay, so let's understand first what is active voice, passive voice. Active voice means what? When any sentence starts with subject, okay, it is called active voice. When any subject is given importance in the sentence, it is called active voice. Passive voice where subject is passive and when object is given the more important. In short, we can say that when any sentence starts with object, it is called the passive voice. Clear? So such type of question, sentences will be asked in your examination. Change the voice. Either the sentence will be given in active and you will have to transfer into passive, or it will be given in the passive and you have to convert into active. Means anything can be happen there. So first, active voice, passive voice. Now let's start. Let's understand the construction of active voice. So generally, if we see कोई भी अगर सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद कंपल्सरी रहता है वर्ब और उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस कंस्ट्रक्शन इज जनरली कॉल्ड एक्टिव वॉइस. कोई भी टेंस ले लो, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, present continuous tense, past continuous tense, okay, then present perfect tense, past continuous tense, whatever tense you can discuss. Generally subject, verb and object will be given in the sentence. It will be called active voice. Now ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको पैसिव में कन्वर्ट करने पर सबसे पहले तो we have to identify the tense. Okay, so that is the first step. We have to identify the step. So यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, तो यहाँ पर देखना है कि वर्ब है वो वर्ब कैसा है. अब उसके लिए आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि भाई चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके लिए कैसा वर्ब चाहिए. तो कोई भी सेंटेंस ले लो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? V1. V1 means base verb. We can say root verb. Okay, तो यहाँ पर अगर root verb है, it is called simple present tense. Okay, present continuous tense के लिए क्या रहेगा? Amijar plus V4. When I talk about V4, it is called verb with ing वाला verb. Okay, so Amijar plus V4, that will be the present continuous tense. Present perfect tense के लिए तो वर्ब क्या होगा यहाँ पर? Have has plus V3. So ये देख लो आप जरा. V1 means base verb. V2 यानी past form वर्ब का. V3 had plus V3 is equal to past
participle. Then V4 means verb with ing. ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर गो, सो गो और गोज, इट इज कॉल्ड V1। अब गो और गोज है तो उसका V2 क्या होगा? वेंट। उसके बाद V3 क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल गॉन। और V4 क्या होगा? गोइंग, G-O-I-N-G। क्लियर? सो ओनली एक वर्ब यहाँ पर देखो, बेस वर्ब, तो उसका V2 होता है वेंट, V3 होता है गॉन और V4 मीन्स गोइंग। क्लियर? तो उसी हिसाब से, तो वंस अगेन फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। तो ये टेंस पहचानने के लिए सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो वर्ब देखना है। वो वर्ब में इफ V1 is given, then you can say it is V1 is given, you can say it is simple present tense। V2 अगर होता है यहाँ पर तो past form है, means simple past tense। अगर यहाँ पर V3 है, means had plus V3, then it is called past perfect tense। have has plus V3 है, then it is the present perfect tense। and am plus ing वाला वर्ब है, it is called present continuous। was were plus ing दिया गया है, then it is called past continuous tense। clear? so ये मेन चीज है। ओके, सो फर्स्ट हमने ये कर लिया काम कि भाई वर्ब जो है वो वर्ब देख लिया आपने, वर्ब के अकॉर्डिंग टू आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद जो होता है वो जनरली ऑब्जेक्ट होता है। थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? जस्ट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन विद व्हाट। जैसे आप व्हाट से क्वेश्चन करते हो, जो भी आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दूसरा ये भी है, whom से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है दैट इज आल्सो द ऑब्जेक्ट, बट इट विल बी ऑब्जेक्टिव केस, मींस मी, him, her, us, you, them। okay, all they are called possessive, they all are called the objective case। okay, so यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर या तो कोई भी चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, या तो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, कर्म विभक्ति। क्लियर? तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मींस एक्टिव वॉइस। अब उसको कोई भी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट कैन वी डू? चलो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने पर ये जनरल है, जनरल कंस्ट्रक्शन। पैसिव में कन्वर्ट करने पर सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए जनरली वर्ब के बाद वो होता है या तो व्हाट से क्वेश्चन करो या तो होम से क्वेश्चन करो, और जो आंसर मिलता है वो अगर वर्ब के बाद है दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम आगे लाएंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो वर्ब है, जो टेंस है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें रखना है। अगर मान लो प्रेजेंट टेंस है तो कंपल्सरी वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ टू बी। सो ऑब्जेक्ट के बाद जनरली फॉर्म ऑफ टू बी विल बी यूज। ओके, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस होता है तो एम इज आर है, पास्ट टेंस है तो वाज वेयर है, फ्यूचर टेंस है तो विल बी या शैल बी, मॉडल ऑक्सिलरीज है तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जनरली बी विल बी यूज्ड। इट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ टू बी। सो ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ टू बी, देन हियर वी हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, मींस इन शॉर्ट वी कैन से V3 will be used here in passive voice। V3 यूज करने के बाद जनरली we have to use here by। this is compulsory। हाँ, by आप कब नहीं रखते? when the subject is not infinite, okay, then by cannot। suppose subject is given someone, someone means what?
कोई परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, सो वहां पर बाय समवन रखना जरूरी नहीं होता है। बाकी आई, वी, यू, ही, सी, दे या तो कोई भी अगर सब्जेक्ट के तौर पर नाम दिया है तो वहां पर हमें बाय के बाद कंपल्सरी वो सब्जेक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना होता है। सो ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी, देन V3 बाय और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखना है बस। सो दिस इज द सिंपल जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, वंस अगेन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके ये जनरल, उसमें वर्ब के अकॉर्डिंग टू हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करने पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ। तो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द ऑब्जेक्ट इज। ओके, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जब कोई वर्ड होता है तो उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर शुरुआत में लेके आते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट में जो वर्ड है वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक पैटर्न है। यू कैन आस्क विद व्हाट और यू कैन आस्क विद whom, और उससे जो भी आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट रहता है और उसको सबसे पहले लेके आ रहा है। बाद में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ टू बी रखना है। यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो फॉर्म ऑफ टू बी विल बी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो फॉर्म ऑफ टू बी विल बी प्लूरल। लेकिन ये इसके बेस पर ये कौन सा टेंस है, ओके, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग टू आपको फॉर्म ऑफ टू बी रखना है। प्रेजेंट टेंस है तो एमिजा रहेगा, देन पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वॉज में रहेगा, फ्यूचर टेंस है तो विल या शैल प्लस बी विल बी यूज्ड। उसके बाद जो भी वर्ब होता है उसका V3 रखना है हमें। V3 रखने के बाद बाय रखो और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना है। क्लियर? सो दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, सही है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सही है, तो वन बाय वन टेंस हम लेते जाएंगे और उसी हिसाब से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते रहेंगे। क्लियर? तब तक आप ये जो लिखा है बोर्ड पर, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव 1 मिनट, यू कैन राइट डाउन, नोट डाउन। Okay, now, so subjective case, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है वो जरा देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस रहेगा आई। तो अगर आई है सब्जेक्ट में तो पैसिव में कन्वर्ट करने पर बाई के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है वो रहेगा मी। We है then us, you है then you, he, him, she, her, it, और they उसका रहेगा them. Clear? So this is the subjective case and this is the objective case. Now let's start simple present tense. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो टाइटल दे दो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। अगर कोई भी
अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी कंस्ट्रक्शन देख लो। एवी मींस एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बाद V1 रहेगा। V1 यानी मैंने आपको लिखवाया है, V1 यानी बेस वर्ब या तो रूट वर्ब रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट I, we, you और they है तो उसके साथ बेस वर्ब रहता है, और अगर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस he, she, it, then verb will be verb with s or es according to the verb, वहां पर s और es लगता है। सो सब्जेक्ट के बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट्री मींस अदर वर्ड्स। ओके, सो दिस इज द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। चलो पैसिव में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करोगे आप, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द ऑब्जेक्ट इज। क्लियर? सो ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो जनरली V1 के बाद है, तो ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप ले लो पैसिव वॉइस में, मींस सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब यहां पर देखो टेंस V1 मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसको एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करने पर हमें क्या करना है, एनी जा रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ टू बी, एम इज आर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इज विल बी यूज्ड। इफ ऑब्जेक्ट मींस यहां पर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया गया है वो प्लूरल है, देन आर, आई अगर है तो एन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ टू बी इन प्रेजेंट टेंस और द पास्ट टेंस। सो ऑब्जेक्ट प्लस एमिजा प्लस जो V1 है उसका V3 करना है। अगर गो है तो गो का, गो वर्ब है उसका V3 क्या होगा, गॉन। सपोज यहाँ पर बाय है तो बाय का क्या होगा, बॉट। सिंग है तो संग, ईट है तो ईटन, स्टडी है तो स्टडीड, प्ले है तो प्लेड, ईट ईटन, राइट? तो ऑल दे आर कॉल्ड द V3 फॉर्म। सो ऑब्जेक्ट एमिजा प्लस V3 प्लस बाय, और बाय के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल करना है, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड से अदर वर्ड्स। क्लियर? सो दिस इज द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, affirmative sentence, active and passive। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम इज आर प्लस V3। जैसे यहाँ पर V1 है तो उसका एम इज आर प्लस V3 इस्तेमाल हो। क्लियर? ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। सपोज he writes a poem every year। ओके, चलो इन ब्रैकेट change the voice, such type of instruction has been given। Now what you have to do, first you can identify either this sentence is active voice or passive voice। पहले तो आपको ये नहीं करना है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो जनरली ही writes ये वर्ब से पता चल जाता है कि यहाँ पर बेस वर्ब है, इट मींस दैट दिस इज द एक्टिव वॉइस। जनरली पैसिव वॉइस के लिए आपको एमिजा वाज वेयर सही है, उसके बाद V3 दिया जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरीज होता है तो उसमें कंपलसरी बी दिया जाता है, ये पैसिव वॉइस के लिए। तो जनरली वो सब वर्ड नहीं है, तो इट मींस दैट दिस इज द एक्टिव वॉइस। नाउ एक्टिव वॉइस में पहले तो ये पता चल गया कि एक्टिव वॉइस है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच टेंस इज यूज्ड हियर, कौन सा टेंस है। तो ये भी यहाँ पर वर्ब से पता चलता है कि यहाँ जो वर्ब है उसको एस और ईएस लगा हुआ है, इट मींस दैट दिस इज द बेस वर्ब। तो बेस वर्ब जब रहता है तो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करने पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट नहीं करना है। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ही राइट्स, वो लिखता है,
Now you can ask a question to verb. Verb को what से question करो, लिखता है, क्या लिखता है, what he writes, answer will be a poem. Clear? So a poem is object. So now जो object है a poem, उसको सबसे पहले रख दो. So a poem. अब ये चीज याद रखना कि यहाँ पर अगर small letter है, लेकिन पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर will be should be capital. Okay, so a poem. Now ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद एनी जार में से सिलेक्शन करना है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो फॉर्म ऑफ टू बी किसके बेस पर, ऑब्जेक्ट के बेस पर. यहाँ पर आर्टिकल ये दिया हुआ है, इट मींस दिस इज सिंगुलर. अब सिंगुलर होता है तो एंड इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर. सो ए पोएम इज, अब राइट से तो राइट का V3 क्या रहेगा, रिटन. सो ए पोएम इज रिटन, देन बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस. अब ही है तो मैंने लिखा है आपको कि ही के सामने उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, हिम. सो अ पोएम इज रिटन बाय हिम एवरी ईयर. ओके, सो दिस इज पैसिव वॉइस. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर सेकंड वर्ड, सेकंड वन सेंटेंस. शी meets the principal every week. Just try yourself first. First step, identify either this sentence is active or passive. So subject के बाद डायरेक्टली वर्ब दिया हुआ है, it means that this is active voice. Now second step, कौन सा tense है. So verb है, उसको s और es लगा है, it means that base verb is given, simply it is simple present tense. Now simple present tense है तो उसको active से passive करना है. तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो. active voice subject, तो subject है यहाँ पर, then V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो she meets whom, यहाँ पर वर्ड से क्वेश्चन करो तो आंसर नहीं मिलेगा. ओके, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, whom से क्वेश्चन करना पड़ेगा. वर्ड से क्वेश्चन कब करना है, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मतलब थिंग कोई दी जाती है, कोई चीज वस्तु दी जाती है. यहाँ पर ये व्यक्ति है, राइट, कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति या तो कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया जाता है तो जनरली वी कैन आस्क the question with whom. So यहाँ पर she meets whom, किसको, the principal. So this is object and this is the complementary. Clear? Now ये sentence को पैसिव में कन्वर्ट करना है. First object, object कहाँ पर है, she meets किसको, the principal. So पहले हम रख देते हैं यहाँ पर the principal. Okay, the principal. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, इट मींस दैट एमीजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, द फॉर्म ऑफ टू बी. अब एमीजार किसके बेस पर रखेंगे, प्रिंसिपल के बेस पर. प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है, द प्रिंसिपल इज. मीट है तो मीट का V3 रहेगा met. सो द प्रिंसिपल इज met बाय, अब शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा हर. और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड्स है, उसको रख देना है मींस कॉम्प्लीमेंट्री एवरी वीक. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस. क्लियर? डिड यू गेट आइडिया? ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू 5 sentences. ओके, एज होमवर्क एंड कंपल्सरी you how to do that task. First one, they eat rice every year. Second, we buy new books. Third one, a postman
gives me a letter. Fourth one, she sings a very nice song. And fifth one, I do my work. Write down these 5 sentences and you have to do. First one, they eat rice every year. Second, we buy new books. Third one, a postman gives me a letter. यहाँ पर ध्यान रखना 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. Then she sings a very nice song. And fifth one, I do my work. Okay, so these sentences are as a homework and you have to compulsorily do at home. Okay, till then, bye, good day, thank you.